السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں تراب۔ نگ خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، PTI کے لاہور جلسے کے لیے خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کا استعمال۔ ذرائع کے مطابق ریسکیو، PDA اور TMAs کی درجنوں گاڑیاں اور دیگر سامان جلسے میں استعمال ہوگا۔ سوابی میں ریسکیو سروس کی گاڑیاں پہنچا دی گئیں۔ گاڑیوں میں ایمبولینسز، 50 سے زیادہ کرینز، فائر بریگیڈ سمیت فائر فائٹرز اور دیگر عملہ شامل ہے۔ گزشتہ ریلی میں آگ لگنے اور گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ کے باعث اس بار دوسرے اداروں کے فائر فائٹرز بھی موجود ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور آج صبح 11 بجے پشاور سے لاہور جلسے کے لیے ریلی کی قیادت کریں گے۔ DG ریسکیو محمد ایاز خان نے کہا گفتگو کرتے ہوئے کہ ایمبولینسز، گاڑیاں اور دیگر عملہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اہم خبر دے رہے ہیں، ریسکیو، PDA، TMA سمیت سرکاری گاڑیاں سامان جلسے میں استعمال ہوگا۔ ملتان سے خبر شامل کریں۔ ملتان موٹر وے پر مزدہ ٹرک اور 22 ویلر ٹرالر کے درمیان حادثہ۔ جانوروں سے بھرا مزدہ ٹرک 22 ویلر ٹرالر کے ساتھ ٹکرا گیا۔ مزدہ میں موجود متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق مزدہ ٹرک نے ٹرالر کو پیچھے سے ہٹ کیا، جس کے باعث 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے مزدہ میں موجود زخمیوں کو نکال کر انہیں نشتر اسپتال منتقل کر دیا۔ جانوروں سے بھرا مزدہ ٹرک ساہیوال سے ملتان مویشی منڈی جا رہا تھا۔ موٹر وے پولیس کے مطابق حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ افسوسناک خبر، ملتان موٹر وے پر مزدہ ٹرک اور 22 ویلر ٹرالر کے درمیان حادثہ۔ مزدہ ٹرک نے 22 ویلر ٹرالر کو پیچھے سے ہٹ کیا، 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، لاہور انتظامیہ نے PTI کو 43 شرائط کے ساتھ رنگ روڈ کاہنہ میں جلسے کی اجازت دے دی ہے۔ NOC جاری، PTI کا جلسہ 3 بجے شروع ہو کر 6 بجے تک ختم کرنا ہوگا۔ NOC کے مطابق کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں وہ جلسے کی مکمل ذمہ داری قبول کریں گے اور ذمہ دار ہوں گے۔ جلسے میں لاہور کے باہر سے قافلوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی امین گنڈاپور اسلام آباد کی تقریر میں کہے گئے الفاظ پر معافی مانگیں گے۔ اسلام آباد جلسے میں نفرت انگیز تقریر کرنے والوں کو جلسے میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے بعد لاہور میں جلسہ کرنے کے لیے تیار۔ تحریک انصاف کی لاہور جلسے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ وزیر اعلیٰ KP کی قیادت میں قافلہ آج سوابی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگا۔ ہر امیدوار کو 500 کارکن ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تحریک انصاف قیادت نے جلسے کے حوالے سے حکمت عملی ترتیب دے دی۔ پارٹی قیادت کے مطابق مختلف شہروں سے آنے والے قافلوں کو جہاں روکا گیا وہیں پنڈال سجے گا۔ PTI قیادت کی جلسہ منتظمین کو مکمل تیاری کی ہدایت۔ رکاوٹیں ہٹانے والی مشینری بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خبر دیں آپ کو، لاہور میں PTI کا جلسہ، لاہور انتظامیہ اور پولیس متحرک۔ لاہور کے اہم شاہراہوں پر کنٹینرز لگانے کا فیصلہ۔ دیگر شہروں سے آنے والے قافلوں کو جلسہ گاہ تک پہنچنے کے لیے صرف رنگ روڈ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ ڈیفنس، لالک چوک، گھوڑا چوک، بیدیاں روڈ، کینال روڈ پر کنٹینرز لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سگیاں، راوی پل، کارپوریشن چوک، آزادی چوک، راوی روڈ کنٹینرز لگائے جائیں گے۔ ٹھوکر نیاز بیگ اور جلوس مین فیروزپورہ روڈ پر آنے والے کینال روڈ پر PTI کارکنان کو اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس اور دیگر اہم عمارتوں اور دفاتر کی سیکیورٹی ہائی الرٹ رہے گی۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی جائے گی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو آج لاہور میں جلسے کے لیے NOC جاری کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ سے درخواست ہے راستوں میں کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہ کریں تاکہ رکاوٹیں نہ ہونے پر عوام وقت پر پہنچ سکیں گے اور ہم جلسہ بر وقت ختم کر سکیں گے۔ لاہور میں جلسے کے لیے NOC جاری کر دیا گیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا بیان۔ انتظامیہ راستوں میں کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہ کریں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا لاہور میں جلسے کے لیے NOC جاری کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، صدر مملکت آصف علی زرداری نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ صدر کے دستخط کے بعد ترمیمی آرڈیننس پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ ترمیمی آرڈیننس کے تحت جسٹس منیب اختر 3 رکنی ججز کمیٹی سے باہر ہو گئے اور چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے حاصل اختیار کے تحت جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی رکن نامزد کر دیا ہے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد صدر مملکت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ جاری پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 2 میں ایک ذیلی شق شامل ہے۔ ایکٹ کے تحت کمیٹی میں چیف جسٹس پاکستان، سینئر ترین جج اور چیف جسٹس کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا۔ آرڈیننس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 3 کی ذیلی شق 2 کے تحت سماعت سے قبل مفاد عامہ کی وجوہات دینا ہوں گی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں آرڈیننس کے ذریعے سیکشن 7A
और बी को शामिल किया गया है। ऑर्डिनेंस में सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। कोई अदालती बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो वजूहात देना होगी। सेक्शन 7B के तहत हर केस अपील की रिकॉर्डिंग होगी और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत अदालती कार्रवाई की ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग अवाम के लिए दस्तयाब होगी। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारर ने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में तरमीम मुनासिब समझी गई। अब जो केस पहले आएगा उसकी पहले समाअत होगी। ये तमाम इस्लाहात और तरमीम अवाम के मफाद को मद्देनजर रखते हुए की गई हैं। नए ऑर्डिनेंस के तहत केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करने वाली 3 रुकनी कमेटी में चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज के अलावा तीसरे रुकन की तकर्री चीफ जस्टिस की सवाबदीद होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है जिसमें तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म कर दिया गया है। इस हवाले से देखते हैं यह रिपोर्ट। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक पीटीआई हिमायत याफ्ता तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आजाद डिक्लेयर किया गया था। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का भी पार्टी पोजीशन में जिक्र किया गया है। स्पीकर के खत के फौरी बाद नई पार्टी पोजीशन जारी की गई है जिसके मुताबिक कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हैं, जबकि MKM के 22, काफ लीग के 5 और IPP के 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 80, JUI फे 8 और आजाद अरकान की तादाद भी 8 है। PK मैप, BNP मेगल और MWM की 1-1 नशिस्त है। एक आजाद रुकने कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रखी है। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को आर्टिकल 142 कानून साजी को इख्तियार देता है। टैक्स मुकदमे में 41 सफ़ात का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में लिखा है, पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी भी कर सकती है जिसका माजी से तलाक होता है। ताहम कवानीन का माजी से तलाक आइन से मशरूत है। कानून साजी आइन में दी गई हदूद के मुताबिक ही मुमकिन है। आइन पार्लियामान पर पाबंदी आयद करता है कि आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हकूक खत्म नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन का माजी से तलाक नहीं हो सकता। सिर्फ आइन शिकनी से मुतल्लिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों को इख्तियार नहीं। कानून के माजी से तलाक से अफ्रीकैन के हकूक मुतासर हो सकते हैं। कवानीन के माजी से तलाक से हतमी हो चुके मामलात भी दोबारा खुल सकते हैं। किसी कानून की 2 तशरीहात मुमकिन नहीं होती तो वही करनी ही चाहिए जो लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। जितनी ज्यादा नाइंसाफी होगी मुकन्ना का किरदार भी इतना ही वाज़ेह होना चाहिए। कानून में तरमीम या कानून खत्म करना एक ही जैसा है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए निजी कंपनियों की अपीलें जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली हैं। खबर दें आपको, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है अदलिया और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बात नहीं हो सकती, इसलिए फौज और अदलिया के खिलाफ तकरीर रोकी जाएंगी। स्पीकर का कहना था आईनी तरमीम का मसवदा उन्हें नहीं दिखाया गया था। पार्लियामान की कार्रवाई में एजेंसियों का कोई किरदार नहीं, किसी एजेंसी के कहने पर कोई इजलास मनसूख नहीं, माजी में ऐसा होता रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत को तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल करने के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश भी की। अयाज सादिक का कहना था कुछ लोग नहीं चाहते मैं स्पीकर की कुर्सी पर बैठूं, मेरे दोबारा स्पीकर बनने से मेरी पार्टी के लोग भी खुश नहीं हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आईनी अदालत की हिमायत कर दी। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आईनी अदालत के क़याम में इत्तफाक करते हैं, हुकूमत मसवदा देने के लिए आमादा नहीं हो रही थी। एक कॉपी फरहम की गई, मालूम हुआ पीपल्स पार्टी या है हमें दी हुई कॉपी का एक जैसी है। हमें जो मसवदा दिया गया था उस वक्त तक उनके पास अक्सरियत नहीं थी, जिस पर JUI ने इस मसवदे पर वोट देने से माजरत की। शख्सियात को सामने रखकर आईनी तरमीम के बजाय इस्लाहात की तरफ जाएं। मुफादात का टकराव पाकिस्तानी सियासत के लिए अच्छा नहीं है। चाहते हैं अदलिया और फौज का एहतराम हो, आइन और अदलिया को तहस नहस
नहीं करने देंगे। आइन में तरमीम करें, क्यों न हम अदालती इस्लाहात की तरफ जाएं। गालिबन एक कॉपी उन्होंने पीपल्स पार्टी को दी थी और बिल आखिर खुदा करके एक कॉपी उन्होंने हमें दी है। मसौदा हमें दिया गया था, इस वक्त तक तो उनके पास अक्सरियत नहीं थी और दारोमदार जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबरान पर था। मफादात का लेन देन हमारी मुल्क की सियासत बन गई। फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी और आज बदकिस्मती से मैं वो दिन भी देख रहा हूँ कि फ़ौज के हक़ में कोई बात करने को कबूल नहीं कर रहा। ऐसा क्यों है? आईनी तरमीम के मसवदे पर तनकीद करना अपोजिशन का हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम मौलाना फजल रहमान को अपने इक़दामात का ज़ाती तौर पर भी जवाब देंगे। मैं चाहूँगा कि मौलाना फजल रहमान को कायल करूँ, इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। ख्वाजा आसिफ बोले, वज़ीर आला KP का इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने लश्कर कशी की बात की थी। वज़ीर आला KP की डेडलाइन ख़त्म होने में 3 दिन बाकी रह गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह ही बनेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता, जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी हैं। तरमीम को लाने में बहुत ताखीर हो गई है। मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर आईनी तरमीम करेंगे। हुकूमत को बिलावजह PTI जलसों में रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। PTI दौर में हमें एक जलसे की इजाजत नहीं मिलती थी, हम PTI दौर में अदालत से जलसे की इजाजत लेते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थीं। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के साथ होने वाली अब तक की मुशावरत बारे नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। PTI में इख्तलाफात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। चेयरमैनशिप के लिए भाग दौड़ शुरू हो गई है। तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीली मुतवक्की बैरिस्टर गौहर के मुतबादिल की तलाश शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने असद कैसर को भी चेयरमैनशिप संभालने के लिए पैगाम भिजवाया। फिलहाल उन्होंने इनकार कर दिया। पार्टी की ज्यादातर जिम्मेदारियां साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक स्पीकर असद कैसर को दे दें। ज़राए के मुताबिक अगर चेयरमैनशिप के लिए कोई मौजू उम्मीदवार ना मिला तो पार्टी मामलात बानी PTI खुद चलाएंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि हुकूमत कल अवामी समंदर का रास्ता रोकने की हमाकत ना करे। अपने एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि KP से जलसे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आला अली मिंगंडापुर काफिले को लीड करेंगे। सवाबी इंटरचेंज पर पूरे सूबे से काफिले पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि सवाबी से अवाम का समंदर लाहौर की तरफ रवा दवा होगा। अवाम का समंदर कल लाहौर से टकराएगा। लाहौर का जलसा इस्लामाबाद जलसे से भी कई गुना बड़ा होगा। सिर्फ KP का काफिला देखकर जाली हुकूमत के ओसान खता हो जाएंगे। सूबाई मुशीर इत्तलात का मजीद कहना था कि कल लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने वाला है। हुकूमत अवामी समंदर का रास्ता रोकने की हमाकत ना करे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अरसाल करदा खत में कहा गया है कि KP असेंबली के कस्टोडियन की हैसियत से खत लिख रहा हूं। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल खत में कहा गया है, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मखसूस नशिस्तों के मामले पर गैर जरूरी ताखीर की जा रही है। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। अलीमा खान के डियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अवाम का वोट चोरी करके चोरों के पलड़े में डाल दिया गया। अब चोरों को बचाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर की साफ और शफाफ इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी थी जो उन्होंने पूरी नहीं की। बानी PTI ने कहा है, एहतजाज आपका आईनी हक है, बाहर निकलकर अपना हक इस्तेमाल करें। कल आपने अदलिया, जमहूरियत, वोट, आजादी को बचाने के लिए निकलना है। उन्होंने सारा आपका वोट चोरी करके चोरों को पकड़ा दिया। अब उन चोरों को बचाने के लिए अब ये सारा मसला चला हुआ है। उसकी जिम्मेदारी थी कि इलेक्शन को फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। इमरान खान ने कहा ये एहतजाज आपका आईनी हक है, आपने निकलकर अपना हक इस्तेमाल करना है।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज।